محترم سامعین و ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں NCERT سیریز DSSP کے سلیبس کے مطابق۔ اس میں ایک اور افسانہ ہے سعادت حسن منٹو کا، وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جی آیا صاحب، یہ ان کے افسانے مجموعہ دھواں میں شامل ہے اور اس کا عنوان ہے قاسم۔ تو جی آیا صاحب جو ہے وہ قاسم کے عنوان سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ افسانہ قاسم کس کا ہے، یا جی آیا صاحب بھی پوچھا جا سکتا ہے، تو دونوں آپ ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد اوورٹیکسنگ سے متعلق ایک ویڈیو آلریڈی ہے چینل پہ، تو اسے پلے لسٹ میں شامل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہیں احمد ندیم قاسمی اور ان کا افسانہ سلطان۔ تو آئیے دیکھتے ہیں جی آیا صاحب۔ سعادت حسن منٹو کی ایک دردناک کہانی معصومیت اور مشقت کا یہ المیہ ہے۔ اس میں یہ دکھایا گیا ہے دو طرح کا ایک ہی چھت کے نیچے۔ ایک ہے قاسم 10 سالہ نوکر، نیند سے بوجھل انتھک مشقت کا شکار ہے، اور ادھر انسپکٹر ہے کہ بے رحم غصے والا اور صرف اپنے آرام اور سامان کی فکر میں مبتلا ہے۔ پورا یہ چکر میں قاسم جو ہے جی آیا صاحب کہتے ہوئے یوں اپنا وجود ختم کر رہا ہے، اور برتن دھونا، اندھے قمقمے میں نیند سے بند ہوتی آنکھیں، حکم کی تعمیل، آدھی رات کو سوڈا لانے کے لیے ہوٹل دوڑنا، سیاہ بوٹ پالش کرنا، خراش نہ آنے کی دھمکی، اور سو جانے پر ٹھوکر اور گالیاں کھانا۔ نیند کا طوفان اور پہلا حادثہ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ، یہ اپنے انگلی کاٹ لیتا ہے تیز چاقو سے، جب صفائی کے لیے مہمان کے آنے پر اور کہا جاتا ہے کمرہ صاف کرنے کے لیے، اور میز پہ جو چاقو ہے تیز چاقو سے نہ چھونے کے لیے، لیکن اسے ہی چھوتا ہے اور اس کے ہاتھ کاٹ لیتا ہے۔ نیند کی کمی نے قاسم کے حواس چھین لیے تھے۔ ڈرائنگ روم صاف کرتے ہوئے غنودگی کے باعث تیز دھار چاقو سے انگلی کٹ گئی، اور اس کی وجہ سے کچھ دنوں تک کام نہ کرنا پڑا، جس کی وجہ سے پھر کئی بار وہ اپنا ہاتھ کاٹتا ہے۔ یہ ہے تکلیف اور خوف قاسم کی حالت۔ بے حسی کا پیمانہ بتایا جا رہا ہے، چاقو کا زخم، تکلیف اور خوف، خون میز پر گر رہا ہے، اسی طرح بلیڈ ہڈی تک گہرا زخم، مسلسل خون کا بہاؤ، موت کا خوف۔ اور مالکان کا کیا رد عمل ہے؟ زخم کی پرواہ نہیں، میز گندی ہونے کا دکھ ہے، مالکان کو اپنے سفید فرش کی فکر ہے، اپنا بستر یہ دبا کر ناک کی سیدھ میں بھاگ جاؤ۔ خون سے زیادہ قیمت فرش کے داغ اور جوتوں کی خراش کی ہے، ان کے ہاں اسی کو دکھایا گیا ہے۔ اس میں پہلے دن معمولی زخم بغیر علاج کے چھوڑ دیا گیا، 15 روز بعد زخم خراب ہو گیا، مگر مشقت جاری رہی۔ اور آخری دواؤں کی الماری میں جب چاقو چھپا کے رکھ دیے گئے سے کاٹتا ہے، تو بلیڈ جب دوا کی الماری میں سے کاٹ لیتا ہے ہاتھ، تو اس پر رحم کھانے یا اس کے علاج کرانے کے بجائے، علاج کے بجائے نوکری سے نکال دیا جاتا ہے، اور تنخواہ بھی نہیں دی جاتی ہے۔ اس طرح وہ ایک اسپتال میں جا رہتا ہے، اور زخم اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہاتھ کاٹنے پڑیں گے۔ کہانی کے اہم الفاظ: خفگی، جانتے ناراض، انتھک محنت، بغیر تھکے کام کرتے رہنا، قمقمہ، اندر روشنی کا بلب، جو بلب ہوتا ہے قمقمہ، غلیظ، گندگی، اور جنبش نہ حرکت۔ قواعد کا ایک اس میں ہے، کا کی کے لیے حرف ربط۔ کا کی کیا ہے؟ حرف ربط ہے، وہ الفاظ جو دو اسم کے درمیان تعلق پیدا کرتے ہیں۔ کا کی، تو جس معنی یہ چھوٹے حروف جملہ مکمل کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے قاسم کے چھوٹے وجود پر سارا گھر چلتا تھا۔ اور انجام میں ایک یہی ہوتا ہے، ایک چوبی تختے پہ، ایک لڑکے کے تختے پہ لکھا ہوا یہ نام محمد قاسم ولد عبد الرحمن مرحوم، اس لیے کہ وہ انتقال 10 سال عمر۔ ڈاکٹروں کے مطابق زخم خطرناک صورت اختیار کر گیا تھا۔ قاسم جو ایک مشین کی طرح استعمال ہوا، بالآخر ٹوٹ کر کچڑے کی طرح اسپتال کے بستر پر پھینک دیا گیا۔ اس میں جو ہے جی آیا صاحب، یہ صرف اطاعت نہیں بلکہ ایک غلامی تھی، یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ قاسم کی شناخت مٹانے کا عمل ہے، روبوٹ بنانے کا عمل ہے۔ مکمل درد، نیند اور بھوک کے باوجود اس جملے کا مسلسل راگ الاپنا ثابت کرتا ہے کہ مالکان نے اس سے انسان ہونے کا حق چھین لیا تھا۔
इसमें वही ये छोटे उम्र मशक्कत, नींद की कमी, मालिकान की बेहिसी जो है इंसान के जान के ज़िया तक पहुंचा देता है। इंसानी हमदर्दी की मौत बगैर सोचे समझे किसी को भी, खास तौर पर बच्चों को, मशीनी पुर्जा नहीं समझना चाहिए। छोटे कानून और जुर्म भी है। छोटे बच्चों को नौकर रखना और उन पर काम का बोझ डालना कानून और अखलाकी जुर्म है। इससे मंटू साहब यही साबित करना चाह रहे हैं। अब खुलासे के बाद हम मुकम्मल अफसाने की तरफ चलते हैं। मुकम्मल अफसाना जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि ये उनके अफसानवी मजमुआ धुआं में शामिल है। उनके अफसानी मजमुआ धुआं में शामिल है। ये उनका अफसानी मजमुआ धुआं। सादत हसन मंटू, हसन अब्बास के नाम इन्होंने किया है इसे। और इसमें ये देखेंगे अगर यहाँ छठे नंबर पे तो कासिम के नाम से है, अजी आया साहब की बजाय कासिम के नाम से है। और सफा नंबर ये है कासिम के नाम से, देखेंगे इसमें आप एक दो से इसमें टेक्स्ट में इसको पेश किया जा रहा है, तो उसमें देखने में थोड़ा वाज़ेह है इबाल। कासिम, बावर्ची खाने की मटमीली फिजा में बिजली का अंधा अंधा सा बल्ब कमजोर रोशनी फैला रहा था। स्टोव पर स्टोव पर पानी से भरी हुई केतली धरी थी। पानी का खौलाव और स्टेव के हालक से निकलते हुए शोले मिलजुल कर मुसलसल शोर बर्पा कर रहे थे। अंगेठियों में आग की आखिरी चिंगारियां राख में सो गई थी। दूर कोने में कासिम 11 बरस का लड़का बर्तन मांजने में मसरूफ था। ये रेल इंस्पेक्टर का बॉय था। बर्तन साफ करते वक्त ये लड़का कुछ गुनगुना रहा था। ये अल्फाज ऐसे थे जो उसकी जुबान से बगैर किसी कोशिश के निकल रहे थे। जी आया साहब, जी आया साहब, बस अभी साफ हो जाते हैं साहब। कई बर्तनों को राख से साफ करने के बाद उन्हें पानी से धोकर करीने से रखना भी था और ये काम जल्दी ना हो सकता था। लड़के की आंखें नींद से बंद हुई जा रही थी। सर सख्त भारी हो रहा था मगर काम किए बगैर आराम ये क्यों कर मुमकिन था। स्टोव बदस्तूर एक शोर के साथ नीले शोलों को अपने हलक से उगल रहा था। केतली का पानी इसी अंदाज में खिलखिलाकर हंस रहा था। दफतन लड़के ने नींद के नाकाबिल मकलूब हमले को महसूस करके अपने जिस्म को एक जुम्बिश दी और जी आया साहब गुनगुनाता फिर काम में मशगूल हो गया। दीवार की गेर यूं पर चुने हुए बर्तन सोए हुए थे। पानी के नल से पानी की बूंदें नीचे नीचे मैली सल पर टपक रही थी और उदास आवाज पैदा कर रही थी। ऐसा मालूम होता था कि फिजा पर गुनूदगी सितारी है। दफतन आवाज बुलंद हुई, कासिम, कासिम। जी आया साहब। लड़का इन्हीं अल्फाज की गर्दान कर रहा था। भागा भागा अपने आका के पास गया। इंस्पेक्टर साहब ने गरज कर कहा, बेवकूफ के बच्चे, आज फिर यहाँ सुराही और गिलास रखना भूल गया। अभी लाया साहब, अभी लाया साहब। कमरे में सुराही और गिलास रखने के बाद वो अभी बर्तन साफ करने के लिए गया ही था कि फिर उसे उसी कमरे से आवाज आई, कासिम, कासिम। जी आया साहब। कासिम भागता हुआ फिर अपने आका के पास गया। बम्बई का पानी किस कदर खराब है। जाओ पारसी के होटल से सोडा लेकर आओ। बस भागे जाओ, सख्त प्यास लग रही है। बहुत अच्छा साहब। कासिम भागा भागा गया और पारसी के होटल से जो घर घर से करीबन निस्फ मील के फासले पर था, सोडे की बोतल ले आया और अपने आका को गिलास में डालकर दे दी। अब तुम जाओ, मगर इस वक्त तक क्या कर रहे हो? बर्तन साफ नहीं हुए क्या? अभी साफ हो जाते हैं साहब। बर्तन साफ करने के बाद मेरे दोनों काले शू पॉलिश कर देना, मगर देखना एहतियात रहे चमड़े पर कोई खराश ना आए, वरना। कासिम को वरना के बाद जुमला बखूबी मालूम था। बहुत अच्छा साहब कहकर वो खाने में चला गया और बर्तन साफ करने शुरू कर दिए। अब नींद उसकी आंखों में सिमटी चली आ रही थी, बल्कि आपस में मिलती जा रही थी। सर में पिघला हुआ शीशा सा उतर रहा था। ये ख्याल करते हुए कि साहब के बूट भी अभी पॉलिश करने हैं, कासिम ने अपने सर को जोर से जुम्बिश दी और वही राग अलापना शुरू कर दिया। जी आया साहब, जी आया साहब, बूट साफ हो जाते हैं साहब। मगर नींद का तूफान हजार बंद बांधे पर भी न रुका। अब उसे महसूस हुआ कि नींद जरूर गलबा पाके रहेगी, पर अभी बर्तनों को धोकर उन्हें अपनी जगह पर रखना बाकी था। जब उसने ये सोचा तो एक अजीब व गरीब ख्याल उसके दिमाग में आया। भाड़ में जाएं बर्तन और चूल्हे में जाएं शो।
क्यों न थोड़ी देर इसी जगह सो जाऊं और फिर चंद लम्हे आराम करने के बाद। इस ख्याल को बागियाना तस्वुर करके कासिम ने तर्क कर दिया और बर्तनों पर जल्दी जल्दी राख मलना शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद जब नींद फिर गालिब आई तो उसके जी में आया कि उबलता हुआ पानी अपने सर पर उंडेल ले और इस तरह इस गैर मरई की ताकत से जो उस काम में हारिज हो रही थी निजात पा जाए। मगर पानी इतना गर्म था कि उसके भेजे तक को पिघला देता। चुनांचे मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मार मार कर उसने बाकी मांदा बर्तन साफ किए। यह काम करने के बाद उसने इत्मीनान का सांस लिया। अब वो आराम से सो सकता था और नींद, वो नींद जिसके लिए उसकी आंखें और दिमाग इस शिद्दत से इंतजार कर रहे थे, अब बिल्कुल नजदीक थी। बावर्ची खाने की रोशनी गुल करने के बाद कासिम ने बाहर बरामदे में अपना बिस्तर बिछा लिया और लेट गया। इससे पहले कि नींद उसे अपने नरम नरम बाजू में थाम ले, उसके कान शू शू की आवाज से गूंज उठे। बहुत अच्छा साहब, अभी पॉलिश करता हूँ। कासिम हड़बड़ा के उठ बैठा। अभी कासिम शू का एक पैर भी अच्छी तरह पॉलिश करने न पाया था कि नींद का गलबा ने उसे वहीं सुला दिया। सूरज की लाल लाल किरणें मकान के शीशों से नमूदार हुई, मगर कासिम सोया रहा। जब इंस्पेक्टर ने अपने नौकर को बाहर बरामदे में अपने काले जूते के पास सोया देखा तो उसे ठोकर मारकर जगाते हुए कहा, ये सूअर की तरह यहाँ बेहोश पड़ा है और मुझे ख्याल था कि इसने साफ कर लिए होंगे। नमक हराम। ओबे कासिम। जी आया साहब। कासिम फौरन उठ बैठा। हाथ में जब उसने पॉलिश करने का ब्रश देखा और रात के अंधेरे के बजाय दिन की रोशनी देखी तो उसकी जान खता हो गई। मैं सो गया था साहब, मगर मगर शू अभी पॉलिश हो जाते हैं साहब। ये कहकर उसने जल्दी जल्दी पॉलिश करना शुरू कर दिया। पॉलिश करने के बाद उसने अपना बिस्तर बंद किया और उसे ऊपर के कमरे में रखने चला गया। कासिम। जी आया साहब। कासिम भागा हुआ नीचे आया और अपने आका के पास खड़ा हो गया। देखो, आज हमारे मेहमान आएंगे, इसलिए खाने के तमाम बर्तन अच्छी तरह साफ कर रखना। फर्श धुला हुआ होना चाहिए। उसके अलावा तुम्हें ड्राइंग रूम की तस्वीरें, मेजें और कुर्सियां भी साफ करना होंगी, समझे? ख्याल रहे, मेरी मेज पर एक तेज धार वाला चाकू पड़ा है, उसे मत छेड़ना। मैं अब दफ्तर जा रहा हूँ, मगर ये काम 2 घंटे से पहले पहले हो जाए। बहुत बेहतर साहब। इंस्पेक्टर साहब दफ्तर चले गए। कासिम बावर्ची खाना साफ करने में मशगूल हो गया। 1.5 घंटे की अथक मेहनत के बाद उसने बावर्ची खाने का सारा काम खत्म कर दिया और हाथ पांव सब साफ करने के बाद झाड़न लेकर ड्राइंग रूम में चला गया। वह भी कुर्सियों को झाड़न से साफ कर रहा था कि उसके थके हुए दिमाग में एक तस्वीर सी खिंच गई। क्या देखता है कि उसके गिर्द बर्तन ही बर्तन पड़े हैं और पास ही राख का एक ढेर लग रहा है। हवा जोरों पर चल रही है, जिससे वो राख उड़ उड़ कर फिजा को खाकस्तरी बना रही है। एकाएक उस जुल्मत में एक सुर्ख आफताब नमूदार हुआ, जिसकी किरणें सुर्ख बर्छियों की तरह हर बर्तन के सीने में घुस गईं। जमीन खून से शराबोर हो गई। कासिम दहशत ज़दा हो गया और इस वहशतनाक तस्वुर को दिमाग से झटक कर जी आया साहब, जी आया साहब कहता फिर अपने काम में मशगूल हो गया। थोड़ी देर के बाद उसके उनके तस्वुर में एक और मुंतजिर रक्स मंजर रक्स करने लगा। छोटे छोटे लड़के आपस में कोई खेल खेल रहे थे। दफतन आंधी चलने लगी, जिसके साथ ही एक बदनुमा और भयानक देव नमूदार हुआ। ये, ये देव उन सब लड़कों को निकल गया। कासिम ने ख्याल किया कि वो देव उसके आका के हमशक्ल था। गो के कद कामत के लिहाज से उससे कहीं बड़ा था। अब उस देव ने जोर से उसे डकारना शुरू कर दिया। कासिम सर से पैर तक लरज गया। अभी तमाम कमरा साफ करना था और वक्त बहुत कम रह गया था। चुनांचे कासिम ने जल्दी जल्दी कुर्सियों पर झाड़न मारना शुरू कर किया। कुर्सियों का काम खत्म करने के बाद वो मेज साफ करने के लिए बढ़ा तो उसे ख्याल आया, आज मेहमान आ रहे हैं। खुदा मालूम कितने बर्तन साफ करना पड़ेंगे। नींद कम वक्त फिर सताएगी, मुझसे तो कुछ भी नहीं ना हो सकेगा। वो ये सोच रहा था और मेज पर रखी हुई चीजों को पोंछ रहा था। अचानक उसे कलमदान के पास एक खुला हुआ चाकू नजर आया। वही चाकू जिसके मुतालिक उसके आका ने कहा था, बहुत तेज है। चाकू का देखना था कि उसकी जुबान पर ये लफ्ज खुद ब खुद जारी हो गए, चाकू, तेजधार चाकू, यही तुम्हारी मुसीबत खत्म कर सकता है। कुछ और सोचे बगैर कासिम ने तेजधार चाकू उठा के अपनी उंगली पर फेर लिया। अब वो शाम को बर्तन साफ करने की जहमत से बहुत दूर था और नींद, प्यारी प्यारी नींद उसे बआसानी नसीब हो सकती थी। उंगली से खून की सुर्ख धार बह रही थी, सामने वाली दवात की सुर्ख रोशनाई से कहीं चमकीली। कासिम उस खून की धार को मुसक्कत भरी नजरों से देख रहा था और मुंह में गुनगुना रहा था, नींद नींद प्यारी नींद।
थोड़ी देर बाद वो भागा हुआ अपने आका की बीवी के पास गया, जो सनान खाना में बैठी सिलाई कर रही थी, और अपनी उंगली दिखा कर कहने लगा, देखिए बीवी जी। अरे कासिम, ये तूने क्या किया? कमबख्त, साहब के चाकू को छेड़ा होगा तूने। कासिम मुस्कुराया, बीवी जी, बस मैं साफ कर रहा था कि उसने काट खाया। सुअर अब हंसता है। इधर आ, मैं इस पर कपड़ा बांधूं। और अब ये तो बता कि आज ये बर्तन तेरा बाप साफ करेगा? कासिम अपनी फतह पर जी ही जी में बहुत खुश हुआ। उंगली पर पट्टी बंधवा कर कासिम फिर कमरे में चला आया। मेज पर से खून के धब्बे साफ करने के बाद उसने खुशी खुशी अपना काम खत्म कर दिया। सामने तोते का पिंजरा लटक रहा था, उसकी तरफ देखकर कासिम ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा, अब इस नमक हराम बावर्ची को बर्तन साफ करने होंगे, और जरूर साफ करने होंगे। क्यों मियाँ मिट्ठू? शाम के वक्त मेहमान आए और चले गए, बाकी खाने में झूठे बर्तनों का एक तोमार सा लग गया। इंस्पेक्टर कासिम की उंगली देखकर से बहुत बरसे और जी खोल कर उसे गालियां दी, मगर उसे मजबूर न कर सके, शायद इस वजह से कि एक बार उनकी अपनी उंगली में कलम तराश चुभ जाने से बहुत दर्द हुआ था। आका की खफगी आने वाले मुसर्रत से भला बुला दी, और कासिम को कूदता फांदता अपने बिस्तर पर जा लेटा। 3-4 रोज तक वो बर्तन साफ करने की सहमत से बचा रहा, मगर उसके बाद उंगली का जख्म भर आया। अब वही मुसीबत फिर नमूदार हो गई। कासिम, साहब की जुराबें और कमीज धो डालो। बहुत अच्छा बीबी जी। कासिम, इस कमरे का फर्श कितना मैला हो रहा है, पानी लाकर अभी साफ करो, देखना कोई दाग धब्बा बाकी ना रहे। बहुत अच्छा साहब। कासिम, शीशे के गिलास कितने चिकने हो रहे हैं, उन्हें नमक से अभी अभी साफ करो। अभी करता हूँ बीजी। कासिम, अभी भंगन आ रही है, तुम पानी डालते जाना, वो सीढ़ियां धो डालेगी। बहुत अच्छा साहब। कासिम, जरा भाग के एक आने का दही तो ले आना। अभी चला बीबी जी। 5 रोज इस किस्म के अहकाम सुनने पर गुजर गए। कासिम काम की ज्यादती और आराम के कहर से तंग आ गया। हर रोज उसे निस्फ शब तक काम करना पड़ता। फिर भी अलस सिवा 4 बजे के करीब बेदार होकर नाश्ते के लिए चाय तैयार करना पड़ती। ये काम कासिम की उम्र के लड़के के लिए बहुत ज्यादा थी। एक रोज इंस्पेक्टर साहब की मेज साफ करते वक्त उसका हाथ खुद ब खुद चाकू की तरफ बढ़ा, और एक लम्हे के बाद उसकी उंगली से खून बहने लगा। इंस्पेक्टर साहब और उनकी बीवी कासिम की इस हरकत पर सख्त खफा हुए। चुनांचे सजा की सूरत में उसे शाम का खाना न दिया गया। मगर कासिम खुश था। एक वक्त रोटी न मिली, उंगली पर मामूली सा जख्म आ गया, मगर बर्तनों का अंबार साफ करने से तो निजात मिल गई। ये सौदा क्या बुरा है। चंद दिनों के बाद उसकी उंगली का जख्म ठीक हो गया। फिर काम की वही भरमार थी। 15-20 रोज गधों की सी मुशक्कत में गुजर गए। इस अरसे में कासिम ने बारहा इरादा किया कि चाकू से फिर अंगुली जख्म कर ले, मगर अब मेज पर से वो चाकू उठा लिया गया था, और बावर्ची खाने वाली छुरी कुंद थी। एक रोज बावर्ची बीमार पड़ गया। अब कासिम को हर वक्त बावर्ची खाने में रहना पड़ा। कभी मिर्चे पीसता, कभी आटा गूंथता, कभी कोयले सुलगाता। घर सुबह से लेकर शाम तक उसके कानों में ओबे कासिम ये कर, ओबे कासिम वो कर की सदा गूंजती रहती। बावर्ची दूर दराज तक ना 2 रोज तक ना आया। कासिम की नन्ही सी जान और हिम्मत जवाब दे गई, मगर सिवाय काम के और चारा ही क्या था। एक रोज इंस्पेक्टर साहब ने उसे अलमारी साफ करने को कहा, जिसमें अद्वियात की शीशियां और मुख्तलिफ चीजें पड़ी थी। अलमारी साफ करते वक्त उसे दाढ़ी मोड़ने का एक ब्लेड नजर आया। ब्लेड पकड़ते ही उसने अपनी उंगली पर फेर लिया। धार थी बहुत तेज, उंगली में दूर तक चली गई, जिससे बहुत बड़ा जख्म बन गया। कासिम ने बहुत कोशिश की कि खून निकलना बंद हो जाए, मगर जख्म का मुंह बड़ा था। शेरों पानी की तरह बह गया। ये देखकर कासिम का रंग कागज के मानिंद सफेद हो गया। भागा हुआ इंस्पेक्टर साहब की बीवी के पास गया, बीबी जी, मेरी अंगुली में साहब का उस तरह लग गया है। जब इंस्पेक्टर की बीवी ने कासिम की अंगुली को तीसरी मरतबा जख्मी देखा, तो फौरन मामले को समझ गई। चुपचाप उठी और कपड़ा निकालकर उसकी उंगली पर बांध दिया, और कहा, कासिम, अब तुम हमारे घर में नहीं रह सकते। क्यों बीबी जी? ये साहब से पूछना। साहब का नाम सुनते ही कासिम का रंग और पीला पड़ गया। 4 बजे के करीब इंस्पेक्टर साहब दफ्तर से लौटे और अपनी बीवी से कासिम की नई हरकत सुनकर उसे फौरन अपने पास बुलाया। क्यों मियाँ, ये अंगुली हर रोज जख्मी करने का क्या माना? कासिम खामोश खड़ा रहा। तुम नौकर लोग ये समझते हो कि हम अंधे हैं और हमें बार बार धोखा दिया जा सकता है। अपना बोरिया बिस्तर दबाकर नाक की सीध में यहाँ से भाग जाओ। हमें तुम जैसे नौकरों की जरूरत नहीं, समझे?
मगर साहब साहब का बच्चा, भाग जा यहाँ से। तेरी बकाया तनख्वाह का एक पैसा भी न दिया जाएगा। अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। कासिम को अफसोस न हुआ, बल्कि उसे खुशी महसूस हुई कि चलो काम से कुछ देर के लिए छुट्टी मिल गई। घर से निकल वो अपनी जख्मी उंगली से बेपरवाह सीधा चौपाटी पहुंचा और वहां साहिल के पास एक बेंच पर लेट गया और खूब सोया। चंद दिनों के बाद उसकी उंगली का जख्म बदएहतियाती के बायस सेप्टिक सेप्टिक हो गया। सारा हाथ सूज गया। जिस दोस्त के पास वो ठहरा था उसने अपने दानिश के मुताबिक उसका बेहतर इलाज किया, मगर तकलीफ बढ़ती गई। आखिर कासिम खैराती अस्पताल में दाखिल हुआ, जहां उसका हाथ काट दिया गया। अब जब कभी कासिम अपना कटा हुआ टुंडमुंड हाथ बढ़ाकर फ्लोरा फाउंटेन के पास लोगों से भीख मांगता है, तो उसे वो ब्लेड याद आ जाता है जिसने उसे बहुत बड़ी मुसीबत से निजात दिलाई। अब वो जिस वक्त चाहे सर के नीचे अपनी गदरी रखकर फुटपाथ पर सो सकता है। उसके पास टीन का एक छोटा सा भभका है जिसको कभी नहीं मांजता, इसलिए कि उसे इंस्पेक्टर के घर के वो बर्तन याद आ जाते हैं जो कभी खत्म होने में नहीं आते थे। यहाँ पे ये अफसाना खत्म होता है। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।